Beloved people of God, we want to move towards the third saying of Lord Jesus Christ. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग तीसरी वाणी की ओर जाना चाहते हैं. And with me is brother Chris Benan Kayanza, who will come forward and read for us that verse from the book of John, chapter 19, and verses 26 and 27. John, chapter 19, verses 26 and 27. It's good. Yeah, my name is Chris from Uganda. Wow. So John chapter 19, verse 6 to 27, it says, when Jesus therefore saw his mother and the disciple standing by, whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy son. Verse 27. Then said he to the disciple, Behold thy mother. And from that hour, that disciple took her unto his own home. Thank you, brother Chris. And I will read in Hindi also. यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना उसका 19 और उसकी 26 और 27 आयत के अंदर में, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है. 27वीं आयत में, तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है. और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया. So before Sister Jennifer comes, I would like to call upon Shekinah worship team to sing a song, maybe one chorus and a stanza, and then Sister Jennifer will come and speak about this word of affection from Jesus Christ from the cross of Calvary. This is the time for Shekinah. Cruz का praise, अद्भुत है, क्रूस का praise, अद्भुत है, क्रूस का praise, अद्भुत है, क्रूस का praise, जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में, जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में, क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन, क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, खाकर कोड़ यीशु ने दी चंगा रोगों से हमें, खाकर कोड़ यीशु ने दी चंगा रोगों से हमें, क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन, क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तू योग्य है, तू योग्य है,
योग्य है मेरी सेवा के, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के। Thank you, Shakana team. Now, this is the time we are going to hear from Sister Jennifer. She's from Uganda, and she will be speaking in English, and we shall have the translation. Praise the Lord. And Prabhu ki stuti ho. Yes, it is a privilege to be here in the house of the Lord this morning. आज के इस दोपहर में परमेश्वर के भवन में होना बड़ी सौभाग्य की बात है। Yes, the third saying of the cross, और तब जो है क्रूस का संदेश इस प्रकार से कहता है, it's coming from the book of John chapter 19 verse 26 to 27. तीसरी वाणी जो है यूहन्ना 19 उसका 26 और 27 निकल कर आती है, But from 25, और मैं 25 से उसको पढ़ूंगी। the Bible says, near the cross of Jesus stood his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Dear woman, here is your son." And to the disciple, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. और मैं 25 से यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, जैसा उनका सिस्टर ने बताया। परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। Amen. So Jesus' mother at the foot of the cross. और तब यीशु मसीह की जो माता है वो क्रूस के पायदान के पास में खड़ी थी। When we look at the four gospel writers, और जब यदि हम चारों इन सुसमाचारों के बारे में देखेंगे, John is the only one who records Mary's presence at the cross. और तब यूहन्ना अकेला है जिसने मरियम की उपस्थिति को क्रूस के पास में दर्ज किया है। Now let us look at the disciple whom Jesus loved. और तब उस चेले की ओर देखें जो उस यीशु से बहुतायत से प्रेम करता था। Who is this disciple whom he loved? और वो ऐसा चेला था जिससे वो बहुतायत से प्रेम करता था। We see in this phrase only 4 other times and only in John's gospel. और इस बात को हम यहाँ पर जो है यूहन्ना की पुस्तक के अंदर में ही पाते हैं। That this disciple is clearly identified as the author Gospel of John. और तब जो है ये शिष्य जो है इस यूहन्ना सुसमाचार का, जो यूहन्ना लिखित सुसमाचार है, उसका एक लेखक के रूप में भी हम उसको देखते हैं। And the church tradition और वहाँ कलीसिया की जो रीतिविधियां हैं identifies this disciple with Saint John the Apostle. और तब जो है इस यूहन्ना को वो प्रेरित के रूप में पहचान करती है। Perhaps the gospel writer और यहाँ पर हम देखते हैं वो सुसमाचार का लेखक है, doesn't want to identify himself परंतु वो अपने आप को पहचानना नहीं चाहता है by the name of modernity. और तब जो है वो अपने आप को बड़ी नम्रता में रखना चाहता है। So this disciple whom Jesus loved is Saint John. और तब जिस शिष्य से यीशु बहुतायत से प्रेम करता था वह यूहन्ना है। One of the 3 disciples who is at the foot of the cross as Jesus is dying. और जब यीशु मसीह वहां पर मौत के कगार पर है, उस समय वो 3 शिष्यों में से एक है जो उस क्रूस के पायदान के पास में खड़ा है। The others are too afraid to be so closely identified with the man condemned by the Romans. और तब बाकी जो उसके शिष्य थे वह इतने भयभीत थे, वो अपने आप को यीशु के अनुयायियों में गिनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि रोमी शासक ने इस प्रकार से उसके ऊपर में दोषारोपण किया था। As well as by the leaders of their own people. और तब उनके स्वयं के, उनके अगुओं के द्वारा से भी। But John is nearby, perhaps to accompany his own mother, Mary's sister. और तब जो है वो मरियम के पास में खड़ा हुआ यूहन्ना इस बात को प्रकट करता है। Now let us look at woman, here is your son. और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं जब यीशु मसीह ने कहा, स्त्री देख ये तेरा पुत्र। He said to his mother, और वो उसकी माता से कहा, dear woman, प्रिय स्त्री है नारी, here is your son. देख ये तेरा पुत्र है।
First, Jesus addresses his mother not as mother but as woman. और पहली बात हमको यहाँ पर देखने की है, वहां पर वो अपनी माँ को माँ करके नहीं पुकार रहा है, परंतु वहां पर वो स्त्री करके या नारी करके पुकार रहा है, Which can be translated as dear woman. और जो इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रिय नारी। As Mary's firstborn, और तब मरियम का पहलौठा होने के नाते Jesus is legally responsible for her welfare. और तब यीशु मसीह इस बात के लिए बहुत ही जिम्मेदार था कि वो उसकी सारी सुख सुविधाओं के बारे में सुधि लेता, To ensure that she has a place to live and food to eat during her widowhood. और तब जो है उसकी ये वास्तविकता में आवश्यकता थी कि वो उस विधवा स्त्री, उसकी बुजुर्ग माँ थी, उसकी वो सुधि लेने के लिए कार्य करे। Jesus entrusts his mother to John's care instead, and John takes this commission seriously. और तब जो है ये आज्ञा मसीह ने यूहन्ना को दी, और यूहन्ना ने ये आज्ञा बड़ी गंभीरता से लेकर उसकी माँ को अपने साथ में लेकर चला गया। From that time on, और उस समय से लेकर this disciple took her into his home. और तब उसने इस नारी को अपनी माँ के रूप में वो लेकर चला गया। This is the word of the Lord. और ये प्रभु की वचन की आवाज है। John 19:25-26. और ये बात जो 27. है हमने देखी है यूहन्ना उसके 19वें अध्याय के अंदर में 26 से 27 के अंदर में। Let's bow our heads and pray. आइए हम अपने सरों को झुका हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I am that I am, और जो तू कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, Jehovah Shalom, और यहोवा शालोम, Jehovah Adonai. और यहोवा अडोनाई, We want to thank you for your presence in this place this इस morning. स्थान में इस दोपहर में आपकी उस उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। We give you all the glory for our lives. प्रभु हमारे जीवनों के लिए हम आपको महिमा देते हैं। Thank you, Jesus, for sacrificing yourself to die for our own sake, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने हमारे लिए उस कुर्बानी को सह लिया that we may be saved ताकि हम उद्धार पाएं, from all the iniquities of this world. और ताकि संसार की ये सारी वो घृणित वस्तुओं से हम आजाद किए जाएं। Thank you for loving us. धन्यवाद, आपने हमसे प्रेम किया है, In Jesus' mighty name we do pray and believe. और यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन और आमीन।